أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے آپ کے لیے جو دروس کا یہ نیا سلسلہ، اصل میں یہ نیا سلسلہ نہیں ہے، یہ ہماری ترتیب جو چل رہی ہے دروس کی اسلامی مسائل کے تعلق سے، جس میں عبادات کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے مکمل کیا، اور اب معاملات کے مسائل شروع ہوئے ہیں، جس میں سے سب سے پہلے کتاب النکاح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کی ابتدا کی گئی پچھلے درس میں، اور ہم نے بتایا آپ کے سامنے جو ہے یہ بات رکھی پچھلے درس میں کہ کس طریقے سے نکاح کا معنی، نکاح کا یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے عربی زبان میں، اور اس کو اسلام نے اسے چوز کیا، اس کا انتخاب کیا، اور اس لفظ کو اسلام نے جو ہے باقی رکھا ہے۔ نکاح کا یہ لفظ جو پہلے سے بھی استعمال ہوتا رہا ہے، اور عربی زبان میں اس لفظ کی اصل میننگ کیا ہوتی ہے اس کی تفصیل بھی میں نے آپ کے سامنے پچھلے درس میں رکھی تھی، جس سے اس جو ہے لفظ کے استعمال کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے جب ہم اس کی میننگ صحیح طریقے سے جانتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں پچھلے درس میں آپ کے سامنے آئی تھی، اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ نکاح کا حکم کیا ہے وہ ہم پیش کریں گے۔ تو نکاح کا حکم کیا ہے؟ تو حکم النکاح، نکاح واجب ہے، نکاح سنت یا مستحب ہے، نکاح ایک جائز عمل ہے، نکاح یہ مکروہ ہے، نکاح حرام ہے، نکاح کا حکم کیا ہے؟ اس کے تعلق سے چند باتیں آج کے اس درس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ لیکن جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے اور یہی ہمارا منہج بھی ہے، محدثین کا طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کرتے تھے مسئلے سے متعلق، اور اگر اس مسئلے میں کوئی قرآن کی آیت ہوتی تھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں جو ہے باب کے بعد اگر اس سے مناسبت سے کوئی آیت ہوتی تھی اس مسئلے سے متعلق تو اس کو بھی ذکر کر دیا کرتے تھے۔ تو نکاح کے حکم کے تعلق سے آج آپ کے سامنے انشاءاللہ نکاح کے مسائل کے سے متعلق جو بعض احکام کتاب و سنت میں ہیں، جو بعض آیتیں ہیں، احادیث ہیں، جس کی روشنی میں جو ہے علماء امت نے نکاح کا حکم مستنبط کیا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اسی سے ہم نکاح کا حکم کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو نکاح کا یہ سلسلہ پہلے تمہید کے طور پر یہ پیش کر دوں، یہ آدم علیہ السلام کے دور سے ہی چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ نکاح ہر زمانے میں ہر مذہب میں اس کا تصور موجود رہا ہے۔ تو نکاح یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا کوئی یعنی جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس کی شروعات ہوئی ہو، یا یہ کہہ لیجئے کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد اس کی شروعات ہوئی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ اس کی شروعات تو جب سے انسان ہے تب سے نکاح کا یہ وجود بھی ہے میرے بھائیوں، کیونکہ انسانی نسل اسی نکاح سے، جو ایک مرد اور عورت کے درمیان نکاح کا یہ رشتہ عمل میں آتا ہے، اسی رشتے کے بعد جو انسانی نسل چلتی ہے، اسی نسل سے ہم سب لوگ ہیں، جس کا ذکر خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اور آپ اس آیت کو بار بار سنتے رہتے ہیں، اس لحاظ سے کہ خطبہ حاجہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن آیتوں کو خاص طریقے سے جو ہے پڑھا کرتے تھے، جن آیتوں کو آقا انتخاب آپ نے کیا پڑھنے کے لیے، اس میں سے یہ بھی ہے۔ تو آپ ہر ہفتے خود میری زبان سے بھی جب خطبہ حاجہ سنتے ہیں تو اس میں آپ یہ آیت بھی سنتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها خلق منها زوجها۔ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک نفس یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کی۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ انسانوں کی اصل، اور اس کے بعد اسی آدم سے یعنی آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جوڑا پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنَهَا زَوْجَهَا، جوڑا، جو یہ کپل جو آپ بولتے ہیں، یہاں سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو شادی ہوئی ہے وہ شادی آدم علیہ السلام اور وہ حوا ہیں، یہ دونوں بھی رشتے ازدواج سے جڑے ہوئے تھے، اور یہ شادی جو ہوئی ہے، یہ شادی جو عمل میں آئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، ایسی کوئی شادی یہ نہیں تھی جس میں کوئی انسان دوسرے انسان سے شادی کے لیے بات چیت کرے، آپس میں رشتے طے ہوں، چٹ منگنی پٹ بیاہ، یا آرام سے جو ہے شادی کا یہ عمل جو ہے سال دو سال کے بعد جو ہے طے ہو، جو بھی شکل ہوتی ہے آج کے دور میں، یا اس کے لیے جو بھی پروسیجرز ہیں، جو بھی جو ہے کاروائیاں ہوتی ہیں، اس وقت تو ہو نہیں سکتی تھی، نہ آدم علیہ السلام کے کوئی رشتہ دار، نہ حوا کے کوئی رشتہ دار، کیونکہ حوا یہ ابھی پہلی خاتون تھی اور آدم یہ پہلے انسان تھے۔ تو ان کی شادی جو کرائی، کس نے کرائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی جوڑا پیدا ہی کیا ہے، پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی بیوی کو ان سے پیدا کیا، ان کا جوڑا ان سے پیدا کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ یہ میرے بھائیوں یہ پہلا کہہ لیجئے کہ نکاح ہے، جو اس جو ہے انسانی تاریخ کا پہلا نکاح، جس میں نہ کوئی ولی نہ کوئی اور چیز، نہ کوئی گواہ، نہ کسی اور چیز کی کوئی ضرورت، کیونکہ یہ تو ڈائریکٹ نکاح خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دو بندوں کے درمیان، ایک بندہ اور ایک بندی کے درمیان، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ نکاح کرایا گیا۔ یہ مطلب نہیں نکاح کرایا گیا کہ آپ یہ سوچیں گے پھر باقاعدہ جو ہے ان کے لیے بھی نکاح کی مجلس بیٹھی، نکاح کی مجلس منعقد ہوئی ہوگی اور اس میں ایجاب و قبول ہوا ہوگا، ساری چیزیں، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک دوسرے کے جوڑے ہو گئے، اور یہاں سے نکاح کا یہ سلسلہ میرے بھائیوں شروع ہوتا ہے۔ شروع میں رشتوں کی کمی تھی، کیونکہ ابھی شروعات تھی، اور جب اس جوڑے سے انسانی آبادی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو شروع میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے کی طرف سے یہ چیز تھی کہ حوا کو
जब बच्चे पैदा होते थे तो जुड़वा होते थे, जैसा कि बाज लोगों ने इसके बारे में जिक्र किया है कि जुड़वा होते थे बच्चे। और शुरू में ये बात रखी गई कि पहले में जो बेटा और बेटी होगा, दूसरी मर्तबा जो बेटा और बेटी होगा, तो ये पहले मर्तबा जो पैदा हुआ है बेटा, वो दूसरी मर्तबा जो बेटी होगी उनके साथ जो है रिश्ता होगा, और पहली मर्तबा की जो बेटी है दूसरी मर्तबा का जो बेटा होगा उसके साथ उसका रिश्ता होगा। ये जिक्र जो है किया है लोगों ने, खास तरीके से मुफस्सिरीन ने अपनी किताबों में, अपनी तफसीरों में इसका जिक्र किया है। तो ये सिलसिला चला, क्योंकि यहाँ जो है भाई बहन का जो मसला है, जो अभी ये है कि भाई बहन का आपस में रिश्ता नहीं हो सकता, तो शुरू में जाहिर सी बात है कि ये कैद, ये कंडीशन नहीं हो सकती थी, क्योंकि वहां तो जो भी पैदा होगा आदम और हवा से यकीनी तौर पर वो भाई बहन भी होंगे, क्योंकि अभी तो इंसानी जो है, इंसानी तारीख और इंसानी नस्ल की शुरुआत है। जैसे जैसे ये दायरा वसी होता गया, ये सर्कल बढ़ता गया, वैसे ही रिश्तों के ताल्लुक से भी, बाज रिश्तों में शादी के ताल्लुक से भी पाबंदियां आई, उसके लिए शर्तें हुई, कंडीशंस रखे गए, ये सारी चीजें बाद में। तो ये शुरुआत थी निकाह के ताल्लुक से। इसीलिए ये याद रखिए कि निकाह वो मुकद्दस बंधन है। बंधन इसी को अरबी में अक्द कहा जाता है। यानी हम जो हिंदी का लफ्ज बंधन जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये समझिए अरबी का जो अक्द है उसी के माना में है। तो निकाह ये असल में वो जो है मुकद्दस बंधन है, ये जिसके जरिए से या जिसके बाद एक लड़का और एक लड़की, एक मर्द और एक औरत शादी शुदा जिंदगी गुजारते हैं, मैरिज लाइफ उनकी उसके बाद कहलाती है। उनके जो ताल्लुक होता है उस ताल्लुक को जायज ताल्लुक ठहराया जाता है। ये निकाह जो आदम अलैहिस्सलाम से चला है और क़यामत तक इंशाअल्लाह इंसानों के दरमियान रिश्ते की ये शक्ल बाकी रहेगी। और ये हर दीन और हर मजहब से इसका ताल्लुक है। ये खालिस कोई इस्लामी चीज नहीं है कि इसका ताल्लुक सिर्फ इस्लाम से है। इस्लाम में भी जो निकाह का निज़ाम है उसे भी याद रखिएगा कि ये ऐसा नहीं था कि जाहिलियत में निकाह का तरीका कुछ और था और इस्लाम ने एक नए तरीके की तरह डाली हो, बुनियाद डाली हो और नया तरीका जो है इंट्रोड्यूस किया हो उस वक्त के समाज में, उस वक्त की सोसाइटी में। तो ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि जाहिलियत में उन्होंने 4 किस्म के निकाह का जिक्र किया है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो है निकाह जाहिलियत में उसके तरीके मौजूद थे। और कहती है कि उनमें से एक यही तरीका है जो इस्लाम के बाद, कुरान के नज़ूल के बाद और इस्लामी हिदायत के नाजिल होने के बाद भी उस तरीके को बाकी रखा गया है। ये निकाह का तरीका भी जाहिलियत में मौजूद था, जो इस्लाम के बाद भी उसे बाकी रखा है। तो ये इस्लामी निकाह, इस्लामी तरीका निकाह का, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। जो बाज लोग बड़ी बेवकूफ़ी कर जाते हैं इस असल मसले को पेश करने में या समझने में, वो कह जाते हैं कि निकाह इसका ताल्लुक इबादत से है, निकाह इसका ताल्लुक अक्द से है इस्लाम। और इससे जुड़े हुए बहुत मसाइल हैं निकाह के। इसीलिए इस हकीकत को जानना बहुत जरूरी है कि निकाह इसका ताल्लुक किससे है? अक्द से है, इबादत से नहीं। वो खुद से है, मुआमलात से है, इबादत से नहीं है। ये क्या मतलब होता है इसका? बाद लोग क्या करते हैं, बड़े जोश में आ जाते हैं, हाँ इस्लाम निकाह, ये इस्लाम का तरीका, और आप कह रहे हो ये इबादत नहीं है। ये कैसे? ये याद रखिए कि इबादत का
लफ्ज इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज में इबादत का लफ्ज जो फुकहा के यहाँ इस्तेमाल होता है उसका मतलब होता है, उसको हम कहते हैं इबादत महदा, यानी वो सिर्फ और सिर्फ इबादत है। और ऐसी जो है इबादत में असल तहरीम होती है, असल में कुछ फिक़ही कवायद हैं इससे जुड़े हुए, इसीलिए हमको ये जानना पड़ता है। तो इबादत जो सिर्फ इबादत है, जैसे नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, इनको कहा जाता है इबादत महदा, जो अब तक हम पढ़ते आए थे। फिक़हुल इबादत हमने कहा कि उसका ताल्लुक फिक़हुल इबादत से था, वो सिर्फ और सिर्फ इबादत है। और खालिस इस्लामी इबादत होती है और इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज से ही उनका ताल्लुक होता है। इस्लामिक इस्तिलाहात भी उसके अंदर जो है इस्तेमाल होती है, ये खालिस इबादत कहलाती है। तो इसी के लिए ये कायदे हैं कि इन इबादत में असल तहरीम है। इसका मतलब ये होता है असल तहरीम कि कोई भी चीज इबादत के ताल्लुक से आपको कहना है कि ये चीज जायज है, तो आपको उसकी दलील पेश करनी पड़ेगी। लेकिन अक़द का जो मामला है, उक़ूद का जो मामला है, या जिसे मामलात फ़िक़हुल मामलात कहते हैं फ़ुक़हा के यहाँ, उसका ये होता है कि इसमें असल ये है कि ये हलाल है सब के सब मामला। अगर कोई हराम है तो सिर्फ हराम की ही तायीन की गई है और उसी की वजाहत की गई है कि ये चीज हराम है। जो जायज है शक्ल है उसको बयान ही नहीं किया गया सिरे से। इसीलिए निकाह के इस मसले में भी याद रखिएगा कि कोई भी निकाह से जुड़ा हुआ मसला आप ये नहीं कहेंगे कि ये हराम है क्योंकि ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में चीज नहीं थी, तो ये बिदअत होगी। नहीं, हराम नहीं कहेंगे, बल्कि उसके हराम होने की दलील पेश करनी पड़ेगी। और जब शरीयत में इसकी कोई शक्ल भी हराम ना हो तो फिर, यानी हराम होने की कोई दलील ना हो, तो फिर असल यही है कि वो हलाल है, जायज है। और शादी के ताल्लुक से जो भी रस्म रिवाज है लोगों के अंदर, अगर वो जो है इस्लामी शरीयत से टकराते नहीं है और इस्लामी शरीयत के जो अहकाम है उससे वो मुतसादिम नहीं है, तो वो सब के सब जायज के जुमरे में आते हैं, यानी उसको जायज कहा जाएगा। और ये कि जो है उसके जायज होने की दलील पेश करो, ये कभी किसी से नहीं कहा जाएगा। अगर कोई ये कहता है तो समझ जाओ कि वो इस्लामी शरीयत से नाआशना है, जाहिल है, वो इस्लामी इबादत इस्लामी मुआमलात का उसे सही से इल्म नहीं। ये जो है होता है इबादत का। और इबादत का एक लफ्ज क्या है अरब जो है इस्लाम के लिहाज से, वो बहुत कॉमन होता है। कॉमन का मतलब यह है कि एक मुसलमान जो भी करता है सब की सब अल्लाह ताला के लिए अल्लाह की इबादत है। अपनी जो है बीवी के मुंह में लुकमा भी डालता है तो ये भी इबादत है, बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है तो ये भी इबादत। तो ये कैसी इबादत है? ये इसका ताल्लुक जो फिक़हुल इबादत हम पढ़ चुके ना, जो कहते हैं कि खालिस इबादत होती है, उससे इसका ताल्लुक नहीं होता। यहाँ इबादत का लफ्ज का मतलब ये होता है कि वो अल्लाह के लिए ये चीज करता है, तो इसमें भी उसको अजर सवाब मिलता है, इसमें भी अजर सवाब मिलता है। लेकिन ये फुक़हा के यहाँ जो तक़सीम है जिससे इस्लामी मसाइल जुड़े हुए होते हैं, तो उसमें ये इबादत के जुमरे में चीज नहीं आती है। इसको कहते ही हैं अक़द, अरबी ज़बान में अक़दे निकाह। तो बात तो आपके सामने थोड़ी सी ये क्लियर करनी थी, तमहीद मैंने वहीं इसीलिए जो है ये बांधी है निकाह का हुक्म जानने के लिए। अब आपके सामने चंद आयतें और हदीसें जो इससे ताल्लुक से, निकाह के हुक्म के ताल्लुक से, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम। अनकिहु निकाह कराओ, अल अयामा उनका निकाह कराओ जो बगैर निकाह के हैं। अल्लाह ताला का हुक्म है ये, अनकिहु अल्लाह ताला का हुक्म है, व अनकिहुल अयामा मिनकुम निकाह कराओ उनका
जो बगैर निकाह के हैं। अय्यम कहते हैं उनको जो अगर कोई औरत है, मान लीजिए उसकी शादी नहीं हुई है अभी तक, तब भी वो अय्यम है, यानी बगैर शौहर की जो औरत है वो अय्यम कहलाएगी। मर्द जो बगैर बीवी का है वो अय्यम कहलाए। इसी तरीके से अगर शादी नहीं हुई है तब भी जो है इसमें दाखिल हुए, और अगर शादी हो करके दोनों का रिश्ता खत्म हो गया हो, चाहे किसी एक के वफात पाने की वजह से या तलाक या खुला की शक्ल में दोनों में अलहदगी हो चुकी है, दोनों में जुदाई हो चुकी है, तो अब ये अय्यम हो गए। और इसके बारे में हुक्म है अल्लाह ताला का कि वअनकिहुल अयामा मिनकुम, जो भी बगैर शादी के हैं उनकी शादी कराओ, उनका निकाह कराओ। ये हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने, किसी को बगैर निकाह के मत छोड़ो। ये निकाह का हुक्म जानने के लिए ये आयत जो है ज़हन में रखिए, निकाह कराओ इनका कहा। इसमें यह भी कैद नहीं है कि जो कुंवारे हैं लड़के और लड़कियां उनका निकाह कराओ, ऐसा कुछ नहीं है जैसा हम लोग समझते हैं। हमारे यहाँ, हमारे इस मुल्क की तहजीब, इस मुल्क का कल्चर ये है कि यहाँ शादी का ताल्लुक या तस्वुर सिर्फ कुंवारों के साथ है, कि कुंवारे हैं। मैं लफ्ज भी यहीं का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपनी जबान में जो हम बोलते हैं वही लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। कुंवारा ही ना बोलते हैं हम लोग, कुंवारा है, कुंवारी है, जो खालिस जो है हमारी हिंदुस्तानी जबान का लफ्ज है। जिनकी अभी तक शादी ही नहीं हुई है उनकी ही शादी कराने के बारे में लोग सोचते हैं, हालांकि अल्लाह ताला का हुक्म खास नहीं है ये कुंवारों और कुंवारियों के लिए, बल्कि ये तो ऐसा आम लफ्ज है कि जिसमें हर शख्स जो बगैर जो है जोड़े के है, बालिग हो जाने के बाद उसके निकाह कराने की ताकीद मौजूद है, हुक्म मौजूद है कि उसका निकाह कराओ। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा मेरे भाइयों और बहनों कि ऐसा होता है हमारे इस जो है मुल्क में, हमारे इस मुल्क की तहजीब का एक हिस्सा था, यहाँ के कल्चर का एक हिस्सा था कि अगर वफात हो जाए, शौहर या बीवी दोनों में से किसी एक की वफात हो जाए, तो लोग यहाँ बड़े फख्र से ये कहते रहे हैं कि अपने शौहर या अपनी बीवी की याद में पूरी उम्र गुजार दी, दूसरा निकाह नहीं किया। यहाँ ताजमहल का कल्चर है, ये हमारी जो है तहजीब, जो इस्लामी तहजीब नहीं है, इस्लामिक कल्चर नहीं है। इस्लामिक कल्चर ये था कि जो बगैर निकाह के हैं निकाह कराओ, वअनकिहुल अय्यामा मिनकुम। मैं इसकी तफसीर कर रहा हूं आपके सामने निकाह का हुक्म बयान करने के लिए। ये तो इस्लाम का हुक्म था, इसमें सब शामिल थे, लेकिन यहाँ का ये था, यहाँ की तहजीब थी जो पहले से चली आ रही थी, इस्लाम के आने से पहले यहाँ की ये तहजीब थी, यहाँ का कल्चर था कि अगर लड़की का जो है अगर शौहर का इंतकाल हो जाता है, औरत बेवा हो जाती है, तो बेवगी की चादर हमेशा उसके जिस्म से जुड़ी रहेगी और दूसरे निकाह की इजाजत नहीं थी, जिसे यहाँ हम मुसलमानों ने भी अपना रखा था। तकरीबन ये चीज थी, दूसरी शादी का कोई तस्वुर ही नहीं था। अभी तो हमारे कुछ नौजवान साथी और हमारे कुछ नौजवान बहनें जो है इस सिलसिले में उन्होंने तहरीक चला करके लोगों को बेदार किया, जागरूक करने का काम किया लोगों को, और बाकायदा जो है ऐसे लोगों की शादियां कराने में जो है पेश है। इधर भी हमारे पास नौजवान साथी, उन्होंने कई लोगों की जिनकी उम्र अच्छी खासी हो चुकी थी, 50-60 साल के करीब उम्र हो चुकी थी, उनकी बीवी का इंतकाल हुआ तो दूसरी शादी के लिए आमादा करके उनकी दूसरी शादी कराई।
वरना हमारा माहौल ये था यहाँ का कि दूसरों को छोड़ो, खुद अपने घर वाले, अपने बच्चे ये पसंद ही नहीं करते थे कि हमारे बाप की दूसरी शादी हो या हमारी माँ की दूसरी शादी, बिल्कुल नहीं। अगर कहीं बाप या माँ ने दूसरी शादी का सोच लिया, तब तो कोई बच्चा इधर मुंह फुलाए बैठा है, कोई बच्ची उधर मुंह फुलाए बैठी है। मैं अपनी माँ की जगह किसी को नहीं दे सकता, मैं अपनी माँ की जगह किसी को नहीं दे सकती। ये जो है तस्वुर, जो इंसान, जो खालिस जो है इंडियन कल्चर का एक हिस्सा था, वो हमारे बच्चों के मासूम जहनों में भी ऐसा रचा बसा था कि लोग इसका तस्वुर नहीं करते थे। ये नहीं जानते ये लोग कि इंसान को अपनी जवानी से कहीं ज्यादा बुढ़ापे की उम्र में साथी की जरूरत होती है। ये तो जानना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए लोगों को। हम समझते हैं कि शायद ये शादी का बंधन सिर्फ अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करने का एक जरिया है, या ये कि ये सिर्फ जो है, जो दोनों का फिजिकल जो अटैचमेंट है, सिर्फ जो है यही चीज शादी का मकसद है। तो ऐसा नहीं है। इंसान को साथी की जरूरत मेरे भाइयों बुढ़ापे की उम्र में और ज्यादा होती है। तो ये सिर्फ उम्र देख करके, यहाँ ऐसा भी हुआ है, मैं जानता हूं ये, कि बाज लोगों ने उनकी जब बीवी का इंतकाल हुआ और शादी करना चाही, उनकी उम्र हो गई थी लेकिन बहरहाल अभी वो शादी कर सकते थे, उन्होंने शादी करनी चाहिए, तो लोग काफी उनके ऊपर एतराज करते रहे कि इन्होंने बुढ़ापे में आके शादी कर ली। ये चीजें क्या है, ये एतराज और ये कलाम, ये बातें और ये तनकीद का निशाना बनाना मेरे भाइयों और बहनों, ये असल में उसी जो है इंडियन कल्चर का एक हिस्सा था, जिसका जो है तस्वुर हम सबके जहनों में मौजूद है, और इसी वजह से लोग एतराज करते रहे। लड़की का भी मामला यही है कि अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो दूसरी शादी लड़की करे, ये तस्वुर ही नहीं होता। हमने बाज जगहों पर यहां तक देखा, ये इंडियन कल्चर की बात कर रहा हूं, कि वो लड़की जिसके शौहर का इंतकाल हो चुका है अपने ससुराल में ही रह जाती है, और ससुराल वाले ही कहते नहीं हमारे घर में ही तुम्हें रहना है, अपने घर भी नहीं जा सकती और दूसरा निकाह भी नहीं कर सकती। कुछ अजीब सी बात है। अब वहां वो क्यों रहेगी? अरे उसका निकाह कराने का हुक्म दिया गया है हमारी शरीयत में, वानकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में जो भी अयामा है उनका निकाह कराओ, ये तो शरीयत का हुक्म था। लेकिन नहीं, यहीं पे रहो। क्यों? वहां जो लोग होते हैं उसके अक्सर लोग तो जो है वहां पर गैर महरम होते हैं, उनके दरमियान औरत रह जाती है। ये इंडियन कल्चर का हिस्सा था, ये इस्लामी कल्चर नहीं था, लेकिन ये चीज रही है मेरे भाई। तो इन चीजों को समझना है। नहीं, शौहर का इंतकाल हो गया, अब इस औरत का दूसरा निकाह होता है, लोग निकाह का पैगाम देंगे और दोबारा इसकी शादी होगी, बगैर निकाह के नहीं रहेगी। ये तो मैंने सिर्फ जो है उनकी बात की है अभी तक आपके सामने, जिसके शौहर का इंतकाल हो गया हो या बीवी का इंतकाल हो गया हो, दोनों सूरत है। अभी हमने तलाक और खुले की बात नहीं कही आपके साथ। हमारे इस समाज के अंदर ये भी है इंडियन कल्चर के लिहाज से कि यहाँ तलाक या खुला गाली तस्वुर किया जाता रहा है। अगर किसी ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया या औरत ने अपने शौहर से खुला ले लिया, तो ऐसा लगता था जैसे उसने कौन सा एटम बम जो है फोड़ दिया, और कितना जो है गलत काम, कितना बुरा काम कर दिया है। ये तस्वुर क्यों ये सब चीजें थी? इसलिए ये चीजें थी मेरे भाइयों कि ये था कि तलाक अगर हो जाए
تو یہاں انڈین کلچر میں یہ بات تھی کہ طلاق ان کے یہاں ایک داغ ہے، ڈائیورس جسے کہتے ہیں آج کی زبان میں، جو اس کے ماتھے کے ساتھ چپک جاتا ہے اور دوبارہ اس داغ کے ساتھ اس کی شادی کا تصور نہیں تھا۔ یہی نہیں کہ اب جس عورت کو طلاق ہو گئی ہے، جس لڑکی کو طلاق ہو گئی ہے، اس کا دوسرا نکاح ہو نہ ہو یہ الگ مسئلہ اپنی جگہ پر، یہ کہانی الگ، اس کی اپنی بہنوں کا بھی نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی بڑی بہن کو طلاق ہوئی ہے، اس کے گھر میں اب کوئی رشتہ ہی نہیں جائے گا۔ یہ عجیب سی منطق تھی، یہ عجیب سا جو ہے یہاں کا کلچر تھا، جو اسلامی کلچر سے بالکل خلاف ہے۔ اسلامی کلچر یہ تھا، اور یہی اسلامی کلچر ہے، اسلامی شریعت ہے یہ، کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے یا طلاق ہے جو بھی شکل ہو، اگر جو ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ نکاح جو ہے ختم ہو گیا ہے، تو فوری طور پر دوسرے کا پیغام آتا تھا میرے بھائی نکاح کے لیے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر کا انتقال ہوا، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو جیسے ہی عدت گزری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیج دیا، اور ان کا نکاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے، تو ان کی بیوی جو بیوہ ہوتی ہے جو ہے عدت گزرتے ہی علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے نکاح کر لیتے۔ میں یہ صرف دو مثالیں دیا آپ کو، جسے آپ جانتے ہیں تو میں نے وہ مثال دیا۔ ایسے ہی تھا اس زمانے میں، اگر کسی لڑکی کو طلاق بھی ہو جاتی تھی تو جیسے ہی عدت گزرتی کوئی جو ہے نکاح کا پیغام بھیج دیتا تھا۔ کبھی جو ہے طلاق ہو جانا عورت کے لیے عیب تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ انڈین کلچر ہے کہ طلاق کو یہ لوگ داغ مانتے رہے، عیب مانتے رہے، اور اس کی وجہ سے اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی تو اس سے نکاح کوئی کرے گا ہی، یہ تصور تھا۔ اور یہ ہم لوگوں کے یہاں بھی میرے بھائیوں یہ چیز آ گئی، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو بھی ایّم ہیں ان کا نکاح کراؤ۔ یہ اسلامی کلچر ہے، اسلامی تہذیب ہے، بغیر نکاح کے کسی کو مت چھوڑو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رب العالمین کا ہے، جو انسانوں کا خالق ہے، مالک ہے، اور جس نے جو انسانوں کی فطرت کو اور ان کی طبیعت کو، ان کے نفس کو وہی جانتا ہے اچھی طرح سے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس کا یہ حکم ہے کہ بغیر نکاح کے مت چھوڑو۔ اس سے آپ کو جو ہے لگے گا کہ نکاح کا حکم کیا ہے، اندازہ لگا لیجئے گا نکاح کا حکم کیا ہے۔ یہ بغیر نکاح کے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے میرے بھائی، سب کا نکاح کراؤ، جو بھی ہے نکاح کراؤ۔ اس کے بعد حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اسی حدیث کی تھوڑی شرح کرنی تھی آج کے درس میں، اور وہی جو ہے نکاح کا حکم وہیں سے بیان کرنا تھا۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا معشر الشباب، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی نکاح کی طاقت رکھتا ہے، جس کے اندر بھی مردانگی ہے، جو قوت باہ رکھتا ہے، اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ فَلْيَتَزَوَّجْ، یہ بھی عربی زبان میں امر کا صیغہ کہلاتا ہے، اسے نکاح کر لینا ہے، حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن کے پاس بھی نکاح کی طاقت ہے انہیں نکاح کر لینا ہے۔ نوٹ کر لیجئے گا، یہ حکم ہے شریعت کا۔ اور کیا کہا؟ معاشر الشباب کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ کیا ہوں گے جو اس درس کو سن رہے ہوں گے، وہ بھی جوان ہوں گے،
जवान कभी हम समझते हो कि सिर्फ 18-20 साल का लड़का ही या लड़की ही जवान नहीं होते हैं, जवानी की उम्र और लंबी होती है। और सारे जवानों को हुक्म दिया, ये नहीं कहा ऐ कुंवारे लोगों, अरबी जबान में उनको आजब कहा जाता है। मैं वो लफ्ज कुंवारा कह रहा हूं तो आप कहेंगे कि जो है वो तो अरबी जो है थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान, तो कुंवारा कहाँ से कहेंगे। मैं उर्दू में बता रहा था आपको कि कुंवारा नहीं कहा है, बल्कि ये कहा है या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलियतज़व्वज, कि ऐ नौजवानों, ऐ जवानों की जमात, माशर कहते हैं जमात को, ऐ जवानों की जमात मुखातब करके कहा। और हो सकता है कि आप में जो लोग इस दर्स में शरीक हैं, बहुत सारे लोग जवान होंगे, और मैं तो यही समझता हूं कि आप में से हर कोई यही समझता होगा कि अभी तो मैं जवान हूं, बूढ़ा तो नहीं हुआ हूं। हर कोई यही समझता होगा। अभी मर्द तो 55 का होकर के भी जवान ही रहता है, कहते हैं 60 का होकर के भी जवान ही रहता है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवानों को कहा है, अगर आप समझते हो कि हम जवान हैं तो बगैर निकाह के नहीं रहना। या माशर शबाब, या माशर शबाब, जवानों की जमात, सुनो, गौर से सुनो इस बात को, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनो, ये मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलियतज़व्वज, तुम में से जो भी निकाह की ताकत रखता है उसे निकाह कर लेना है, हुक्म दिया जा रहा। अब यहाँ एक बड़ा मसला आता है कि अलबाअतों से क्या मुराद है। निकाह के हुक्म से ये चीजें जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम ये बातें आपके सामने पेश कर रहे हैं। ऐ जवानों की जमात, आप सब की सब जवान हैं, कोई भी बूढ़ा नहीं है आप में से, याद रख लीजिएगा, सब की सब जवान है, चाहे मर्द हो चाहे औरतें हो, सब की सब जवान है। और ये बातें आप हमारी जो है सुने, समझें इसको। जो कहा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम में से जिसके पास भी ताकत है उसे निकाह कर लेना है। अगर मर्द होता है तो ये हुक्म उसके लिए ये होता है कि उसे खुद निकाह करना होता है, क्योंकि उसको वली की जरूरत नहीं होती है। अगर औरत है तो यही हुक्म उसके वली को हो जाता है कि उसके वली को चाहिए कि उसके निकाह को जल्द अज जल्द अंजाम दिया जाए और निकाह उसका मुकम्मल, निकाह कराया जाए। जब रिश्ता आता है तो रिश्तों में टाल मटोल न की जाए, ताखीर न की जाए। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है। कहा फलियतज़व्वज, लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी, दोनों के लिए ये हिदायत है, इसे नोट कर लीजिए। अलबात से क्या मुराद है, इस हदीस की शरह लिखने वालों ने इसके बारे में कहा कि उसमें से बाद लोग ये कहते हैं कि अलबात से मुराद मऊनतुन निकाह है, निकाह का खर्चा। निकाह करने की ताकत क्या है, निकाह का खर्चा है, ये बीवी का बोझ उठाने की ताकत। और एक दूसरा जो है कौल ये है कि अलबाअत से मुराद है कुव्वत जिमा, बीवी से मिलने की ताकत, जिसे आप उर्दू में कहना चाहें तो बड़ी आसानी से कह सकते हैं मर्दानगी। एक लफ्ज है जिससे ये पूरा माना क्लियर हो जाता है। यानी गोया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि जिसमें से तुम में से जिसके पास भी मर्दानगी है, कुव्वत जिमा है, बीवी के साथ मिलने की ताकत है, तो उसको बगैर निकाह के नहीं रहना है। फलियतज़व्वज, वो निकाह कर, फलियतज़व्वज, वो निकाह कर ले, शादी कर ले। मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलियतज़व्वज। आज मेरे भाइयों, हमारे इस माहौल में, सिर्फ हमारे ही नहीं, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में भी ये चीज पाई जाती है, अरब कंट्रीज में भी ये चीज पाई जाती है कि खामखा शादी को डिले करते रहते। हमारे यहाँ इस मुल्क में एक बड़ी अहम बात जो है ये होती है कि
एक तस्वुर है, इंडियन कल्चर का ये तस्वुर है, याद रखिएगा कि जब तक लड़का अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए तब तक उसकी शादी नहीं की जा सकती। मैंने बहुत ताज्जुब किया, अभी जल्द ही एक जगह जो है बात हो रही थी फोन पर, बात करने वाली खातून थी, उनकी अपनी लड़की के रिश्ते का मसला था कुछ जो है, तो वो रिश्ते वगैरह कुछ आए तो उन्होंने जो है इनकार कर दिया, नहीं किया कि लड़की अपने पैर पर खड़ी हो जाएगी तब रिश्ता करेंगे। तो मैंने बड़ा ताज्जुब किया कि अब तक तो सिर्फ लड़कों का मसला था ये, अब कहाँ से लड़कियों का भी शुरू हो गया अपने पैर पर खड़े होने का। ये मुहावरे के तौर पर बोला जाता है लफ्ज, मुझे ये जो है आप सब जानते हैं, अपने पैर पर खड़े होने का मतलब ये है कि जब तक खुद कमाने ना लगे तब तक उसका निकाह जो है नहीं किया जाएगा। तो ये पैर पर खड़े होने का भी बड़ा अजीब मामला है जो है, लोगों का पैर पर खड़े होने का, अपने पैर पर खड़े होने का। मुझे ऐसे मौके पर एक लतीफा याद आता रहता है, लेकिन शायद ये मजलिस उस लतीफे को बयान करने के जो है मुनासिब नहीं है, इसलिए मैं वो लतीफा आपके सामने पेश नहीं करता। कभी जो है लोग इस तरह से बेतकल्लुफ लोग होते हैं तो हम वहां पर उसे बयान भी कर दिया करते हैं, अपने पैर पर खड़े होने की कहानी क्या है ये। तो ये एक हमारे यहाँ चीज आ गई है, पैर पर खड़े हो गए तो निकाह किया जाएगा। ये कहाँ से मसला आ गया? कभी ये आ जाता है हमारे यहाँ कि अभी तो बच्ची पढ़ रही है या अभी तो लड़का पढ़ रहा है, तालीम खत्म हो जाएगी तब निकाह करेंगे। तालीम निकाह के लिए रुकावट है, या ये कि बच्चा अभी कमाता नहीं है तो न कमाना ये निकाह के लिए रुकावट है? ऐसा कहाँ है इस्लाम में? ऐसी कोई चीज नहीं है मेरे भाई। मैं आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में निकाह का एक किस्सा जिक्र करता हूँ। किस्सा मैंने कहा, कहानी लोग पसंद करते हैं इसलिए, वरना एक हदीस है वो। जो किस्से कहानियां होती हैं उस तरह की किस्से कहानियों से उसका ताल्लुक नहीं है। एक खातून आती है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह की अपनी ख्वाहिश जो है जाहिर करती है, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त निकाह करने की आपको जो है ख्वाहिश नहीं थी, आप निकाह करना नहीं चाह रहे थे। उस खातून को आपने देखा और आपने कोई जो है रिस्पांस उसका नहीं दिया कि निकाह आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। सहाबा को पता लग गया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे निकाह करना नहीं चाहते हैं, तो एक सहाबी ने कहा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इनसे निकाह करना नहीं चाहते हैं तो मुझसे इनका निकाह करा दीजिए, मुझसे निकाह करा दीजिए। उस वक्त जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने ये दरखास्त कर दी और निकाह कराने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार भी। और आपने पूछा उनसे कि ठीक है साहब निकाह तो करा देंगे लेकिन महर में क्या देंगे? निकाह में एक चीज महर का मसला एक होता है, महर में क्या देंगे? तो कहा कि मेरे पास तो यही एक इजार है, इसके अलावा कुछ नहीं है, यही एक इजार है और कुछ नहीं है। जैसे ही जो ये बात कही कि मेरे पास तो यही एक इजार है और कुछ नहीं है, तब जो है ये मसला आया कि भाई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये इजार आपने बीवी को दे दिया महर में तो आप नंगे घर में बैठ जाओगे, फिर क्या करोगे? जाओ ढूंढो इल्तमिस वलो खातम मिन हदीद, चाहे लोहे का एक छल्ला, एक रिंग जो है, रिंग जिसे आप कहते हैं अंगूठी, वो भी सोने चांदी की नहीं, लोहे की स्टील की अगर मिल जाए, मामूली छल्ला जिसे आप कहते हैं अपनी जबान में, तलाश करो, अगर वो मिल जाए तो वही लेकर के आ जाओ। सब तलाश करके आगे कुछ नहीं मिलता। आप वो हदीस सुने हैं बारहा, मैं सिर्फ याद दिलाता हूँ, ये पैर पे खड़े होने वाली बात। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो नहीं कहा, ये जो निकाह का खर्चे की जो बात कही जाती है इस हदीस की शरह में, मैं वो असल में क्लियर करना चाहता हूँ। सही बात यह है कि वो मुराद नहीं है। यहाँ कौन सा
उस सहाबी के पास क्या था जिससे निकाह करा दिया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्या ये देखा कि क्या कमाते हो? क्या ये देखा कि तुम मेरी बेटी को या जो इस औरत को क्या खिलाओगे? अरे जो रोज कमाता है, रोज खाता है, जो कमाएगा लाएगा तो बीवी को भी खिलाएगा, अगर नहीं कुछ कमाई हुई तो खाली पेट सोएगा तो बीवी भी खाली पेट सोएगी। ये पैर पर खड़े होने का मामला कहां से आ जाता है? पैर पर खड़े होने का, पैर पे खड़े होने के ये कल्चर, ये शादियों में इतनी ताखीर करा देता है कि लोग पैर पर खड़े होने की कोशिश में खुद जो है सो जाते हैं। निकाह की उमंग और ख्वाहिश भी खत्म हो जाती है। ये गलत कल्चर है। उस कल्चर को हमने आम किया और जिसकी जबान से भी सुनो सब यही कहते रहते हैं। निकाह की जब बात आती है, निकाह को डिले करते जाएंगे कि अपने पैर पर खड़े हो जाए। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, नहीं नहीं। और ये सिर्फ देखना है, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि अगर उसके अंदर ताकत है, निकाह की ताकत है, और जो शौहर का हक होता है, जो बीवी और जो है शौहर के दरमियान जो खास ताल्लुक होता है, उस ताल्लुक को कायम रखने की उसके पास सलाहियत है, उसका निकाह होना चाहिए। मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलियतज़व्वज, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, फलियतज़व्वज। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो हुक्म देते हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से ही देते हैं, इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। ये अल्लाह ताला का हुक्म है, हमें हुक्म दिया गया है निकाह करने का और हमें निकाह करना चाहिए। निकाह का हुक्म है ये। अब यहाँ सवाल, बहरहाल ये तमहीद थी जो हमने पेश की, हदीस पूरी शरह नहीं किया मैंने, असल में यही टुकड़ा था हमारा आज का जो है उसमें हदीस के अंदर कि फलियतज़व्वज, हदीस में और भी आगे अल्फाज है, लेकिन फलियतज़व्वज ये हुक्म है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, जो असल हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से है। अब इस हुक्म के बाद आप समझ गए कि कुरान में भी निकाह का हुक्म दिया गया है, हदीसों में भी निकाह का हुक्म दिया गया है, और कुरान में लड़कियों के औलिया को भी हुक्म दिया गया, जो वली हैं, कि अपनी जो है लड़कियों का निकाह कराओ, अपने मातहत जो औरतें हैं उनका निकाह कराओ। ये औलिया को भी हुक्म दिया गया है। और अहादीस में भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों के वली को हुक्म दिया है कि वो जब मुनासिब रिश्ता आता है तो उनका निकाह करा दे, ताखीर ना करें, क्योंकि इससे बड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा। आज निकाह की ताखीर बड़ा सबब है मेरे भाइयों उन बुराइयों का, जो बुराइयां हमारे समाज में जड़ पकड़ चुकी हैं। हमारी सोसाइटी में जो बीमारियां बड़ी आम हो चुकी हैं, इन बीमारियों की एक बड़ी वजह मेरे भाइयों ये शादी को डिले करना है, निकाह को डिले करना है, उसको ताखीर करना है। अब ये हुक्म तो है शरीयत के अंदर, अब सवाल ये होता है कि ये हुक्म वाजिबी हुक्म है, मैंडेटरी जिसे कहते हैं या ऑब्लिगेटरी जिसे कहते हैं आप आज की ज़बान में, ये वाजिबी हुक्म है या सुन्नत का हुक्म है, इस्तेहबाबी हुक्म है? वाजिबी नहीं, इस्तेहबाबी हुक्म है। कैसा हुक्म है ये? तो निकाह का हुक्म उसी पर मुतय्यन होता है। हमारे फुक़हाए किराम ने, अइम्माए किराम ने निकाह को लेकर के पांचों बातें कही हैं, वाजिब होने की भी, सुन्नत होने की भी, जायज़ होने की भी, और मकरूह होने की भी, और हराम होने की भी। अब ये पांचों चीजें हम आपके सामने क्लियर करना चाहते हैं। जो शरीयत के अहकाम हैं हमारे लिए, वो अहकाम या तो वाजिब होते हैं या तो सुन्नत और मुस्तहब होते हैं। एक ही चीज हो गई मुस्तहब और सुन्नत, या तो सिर्फ जायज की हद में आते हैं या मकरूह या हराम के जुमरे में आते हैं। ये पांच चीजें होती हैं उसमें।
निकाह के बारे में फुक़हा किराम ने 5 बातें जिक्र की, थोड़ी सी वजाहत कर देता हूं आपके सामने 5 की। कहते हैं कि निकाह करना उस शख्स के हक में वाजिब और फर्ज है, चाहे मर्द हो या औरत, दोनों के लिए। जब भी हम अहकाम जिक्र करते हैं ना, तो दोनों के लिए। हमारी शरीयत में बड़ा बैलेंस है दोनों का। ये हमारी बाज खवातीन को थोड़ी सी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो समझते हैं कि यहाँ अहकाम सिर्फ मर्दों के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है। बाज खवातीन ने हमारे सामने जिक्र किया, हमें बहुत ताज्जुब हुआ उस वक्त कि इसमें अहकाम सिर्फ मर्दों के लिए होते हैं। इसमें कुछ गलतियां हमारे जो मुकर्रिर लोग होते हैं ना, खतीब लोग, उनकी तरफ से भी हो जाती है कि जब भी वो बयान करते हैं निकाह वगैरह के मसाइल, तो इस तरह से बयान करते हैं जैसे ये अहकाम सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। इस वजह से भी उनको गलत फहमियां हो जाती है। हमेशा नसीहत जो है औरतों को करते रहते हैं, शौहर की इताअत करो, ये करो, ये करो। कभी जो है जो बैलेंस है इस्लाम में, कि मर्दों को जो हिदायत दी गई है, जबकि इस्लाम में ज्यादा हिदायत मर्दों को दी गई है। मैरिज लाइफ की जो हिदायत है ना, जो गाइडलाइन है, ज्यादा मर्दों को दी गई है, औरतों को कम दी गई है, क्योंकि उनको ही असल में पूरे माहौल को अच्छा बना के रखना रहता है, और जो है अच्छी जो है खुशगवार जिंदगी के लिए, हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए ज्यादा जिम्मेदार शौहर होता है, इसलिए उनको ये हिदायत ज्यादा दी गई है। तो दोनों को जो है शामिल करके हमेशा बात को ज़हन में रखिएगा, बैलेंस है, और इसमें कभी भी कोई किसी एक जानिब का ख्याल किया गया हो, दूसरे को नजरअंदाज किया गया हो, ऐसी कोई बात शरीयत में नहीं होती है। तो हमने कहा आपसे कि पहली बात क्या है, वाजिब। ये निकाह करना वाजिब या कहिए फर्ज है उस शख्स के हक में, चाहे मर्द हो या औरत, जो निकाह की ताकत रखते हैं। ये ताकत रखने की बात मर्दों को कही जाती है। निकाह की ताकत रखते हैं, ताकत से मुराद सिर्फ पैसे नहीं है। हमने आपको बताया कि जो है उनके पास निकाह की शहवत, ख्वाहिश मौजूद है, और साथ में बीवी का खर्चा बर्दाश्त करने की सलाहियत भी है। अरबों और जो है करोड़ों का मसला नहीं है, सिर्फ बीवी का खर्चा, खुद अपना खर्चा, बीवी का खर्चा, इतना उसके पास है, इतनी गुंजाइश है। अगर सर्विस है तो सर्विस, जॉब है तो जॉब, जो भी, या रोज की मजदूरी करने वाला है तो भी जो है जो खाएगा बीवी को भी खिलाएगा, अगर ये ताकत है उसके पास। और साथ में बीवी जो है निकाह करने की ख्वाहिश इस हद तक है कि उसे डर है कि अगर निकाह नहीं किया तो हराम में मुब्तला हो जाएगा, हराम में मुब्तला हो जाएगा, हराम में मुब्तला हो जाएगा। याद रखिएगा जुमला ये मेरा, ये डर है उसे, तो फिर निकाह करना उसके लिए वाजिब होता है। ये जो निकाह के दफ्तर बनाए जाते हैं ना अभी आजकल, तो लोगों में क्या है मशहूर कि निकाह सुन्नत है, निकाह सुन्नत है। ऐसा नहीं है, निकाह हमेशा सुन्नत ही नहीं है। निकाह की बात जो है शक्लों में निकाह करना ये वाजिब है। ये तो यहाँ फुक़हा किराम ने क्या लिखा है, अइम्मा किराम ने, कि निकाह करना ऐसे शख्स के हक में वाजिब है, ये फर्ज है। ये अगर निकाह नहीं किया, गुनाह में मुब्तला हुआ, तो ये जुर्म होता है। और कहा जाता है अरबी में एक बड़ा मशहूर कायदा है, अरबी ना कहूँ बल्कि फ़िक़्ह में कहूँ तो अच्छा है। फ़िक़्ह में, हमारी इस्लामी शरीयत में ये रूल रेगुलेशंस है कुछ, उसमें से एक ये भी है कि हराम से बचना वाजिब है हमारे लिए, हराम से बचना वाजिब है। और जब किसी वाजिब के लिए ये होता है कि वाजिब को पूरा करने के लिए उससे कोई चीज जुड़ जाती है, तो उसे भी पूरा करना वाजिब हो जाता है। तो हराम से बचने के लिए शहवत के मामले में अगर ऐसा महसूस हो रहा है, डर रहा है, यकीन है उस शख्स को कि अगर हमने निकाह नहीं किया तो हम गुनाह में मुब्तला हो जाएंगे, यकीन है इसका, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, और उसके पास निकाह की ताकत मौजूद है,
तो उसका निकाह न करना ये जायज नहीं है। निकाह ऐसे शख्स के हक में वाजिब है, फर्ज है। सिर्फ सुन्नत मत समझिए कि निकाह करना तो सुन्नत है, वैसा नहीं है। डिले नहीं कर सकता यह शख्स, और निकाह को डिले करके हराम में मुब्तला रहे, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती है। हमारा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अभी मैंने सिर्फ एक ही जो है पेश किया। ये शक्ल होती है निकाह के वाजिब होने की, निकाह के सुन्नत होने की, निकाह के जायज होने की, निकाह के मकरूह होने की, और निकाह के हराम होने की क्या शक्ल होती है। इतना जानने के लिए आपको एक हफ्ते का इंतजार होगा। आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह फिर इसी वक्त आपसे मिलेंगे। आज का वक्त हो चुका है, तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मिलेंगे और तफसील बयान करेंगे कि निकाह करना कब सुन्नत है, मुस्तहब है, कब जायज़ है, और कब मकरूह है, कब निकाह है, कब जो है हराम है। इंशाअल्लाह एक हफ्ते का इंतज़ार, और फिर आपकी खिदमत में ये दर्स जो है दोबारा से पेश किया जाएगा, और ये हुक्म इंशाअल्लाह क्लियर किया जाएगा पूरे तरीके से दलाइल की रोशनी में। पहला हुक्म हमने पेश कर दिया कि कब जो है निकाह करना वाजिब होता है, और उसकी दलील भी पेश कर दी। अगर सही तरीके से न समझ में आए तो आइंदा हफ्ते एक मर्तबा और इसे क्लियर करेंगे और बात वाज़ेह हो जाएगी इंशाअल्लाह। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।